Welcome to the Gyan Kosh. Today we will be covering important things for finance portion, mainly for SEBI Phase 2 examination. Okay. Mm. So first thing is Finance Commission, 16 Finance Commission. Okay. So you need to know that it is constituted under Article 280 of the Constitution. Okay. Chairman of 16th Finance Commission report was Arvind Panagaria, and the period which it will cover is 2026-27 to 30-31. Okay, so it covers vertical devolution and horizontal devolution. Vertical devolution is from center to state. Okay, so overall divisible pool is 41%. Okay, it was same as the case of 15th Finance Commission. Okay, in case of horizontal distribution or devolution, it is like among the states. Okay, so for that purpose there is a criteria. Okay, and this distribution is based on the weights, and the weights are as follows. So you have to remember each and every weight कि किसका कितना weight है. So main thing to remember is like tax and fiscal efforts, which was there in case of 15th Finance Commission. It was not in the, it is dropped in case of 16th Finance Commission. And second, contribution to GDP, it was not there in 15th Finance Commission report, while it is there in case of 16 the current Finance Commission. Okay, these 2 points you have to remember for sure, and for others you can remember the weights of 16 Finance Commission only. Okay, then how these like parameters are defined. So for each and every parameter there are some like other elements which you have to see. Will not go in much detail about it. Okay, so the next point which is important in case of Finance Commission is grants and aid. Okay, so grants and aid is mainly the money given by the central government to states, and through states it it goes to local bodies. Okay, for some specific purposes. So now what has been changed in case of 16th Finance Commission? Coverage now at the grants and aid will cover only two things. One is rural and urban local bodies, and second is disaster management. Okay, while in case of 15th Finance Commission there were other things also. Now they had been discontinued, like revenue deficit grants, sector specific grants, and state specific grants. These things are discontinued from 16th Finance Commission. Okay, now that local body grants, okay, this rural urban local body wala, तो mainly for 5 years. ठीक है, these figures you may skip. So now split of local body grants, it is divided into two parts. One is basic grant and second is performance based grant. Again, the basic grant will be divided in further two parts. So out of the 80%, 50% is untied, and second 50% is tied to sanitation and solid waste management and water management. ओके, सो लोकल बॉडीज को दो टाइप की ग्रांट्स मिलेगी, बेसिक एंड परफॉर्मेंस बेस्ड. बेसिक ग्रांट में भी दो एलिमेंट है, वन इज अनटाइड 50% एंड सेकंड इज टाइड विच इज टाइड टू द टू गिवन कंडीशंस. ओके, one more thing is there कि to receive this grant local bodies must satisfy some conditions. One is they must be formed as per the provisions of constitution. एक their accounts or provisional accounts must be available in public domain. They must be audited. Okay, audited or provisional accounts must be published in the public domain. And then timely constitution of state finance commission, like the central finance commission which is formed under article 280. States also form finance commissions. Okay, they so state must form finance commissions if they want to get local body grants. Okay, so local body grants, basic and performance based. Basic we have already covered. Okay, performance based grant which is 20%. Okay, तो उसमें कैसा है कि स्टेट परफॉर्मेंस ग्रांट एंड लोकल बॉडी परफॉर्मेंस ग्रांट, अगेन देर आर टू सब डिविजन्स. ओके, so state performance grants will be available after meeting minimum benchmark for transfers to local bodies from the own resources.
इसका कैसा है ना कि स्टेट्स आर ऑल्सो टेकिंग स्टेप्स टू प्रोवाइड फंड्स टू द लोकल बॉडीज, एंड this thing is that local bodies are taking efforts for generating their own source of revenue. Okay, so the second point is linked to the achieving minimum targets for own source revenue growth. Okay, now some other grants are also there. One is special infrastructure grant. Okay, it is mainly provided for comprehensive wastewater management in cities with population of 10 to 40 lakhs. ओके, एज पर 2011 सेंसस डेटा, और इसका अमाउंट कितना है 56,100 ओवर 5 years. So you have to remember this figure also, okay, that how much amount for special infrastructure grant is given or provided by the 16th Finance Commission. The amount answer will be 56,100. Okay, one more grant is there, that is urbanization premium grant. Okay, it is the amount, remember, 10,000 crore. Okay, it is one time grant for, like, mainly it is like encouraging transition to urban areas. Okay, it is for merger of peri-urban villages into adjoining urban local bodies area and rural to urban transition policy. Okay, so urbanization premium grant is 10,000 crores. Yes, this fiscal roadmap, central plus state. So overall, these are very important limits. You have to remember it. So by 2030-31, okay, by the end of the period of Finance Commission, central fiscal deficit should be bring down to 3.5% of GDP. Okay, states annual fiscal deficit limit is 3% of state gross state domestic product. ऑफ बजट बोरोइंग्स शुड बी डिसकंटिन्यूड. ठीक है, जो भी है आप बजट में लेके आइए कि कितना आपको रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होगी. एक ऑल्सो रिमेंबर दिस फिगर दैट कंबाइंड सेंटर प्लस स्टेट डेट प्रोजेक्शन. तो बाय 2030-31 इट शुड बी 73.1%. इट इज कंबाइंड डेट ऑफ सेंट्रल प्लस स्टेट. ठीक है, इट इज अ टारगेट. देन सम रिफॉर्म्स आर देयर. Next we will come to new CPI series. It is also very important topic because recently it is has come into force. So one figure you have to remember कि January में retail inflation was 2.75%. Every month inflation rate changes, but it is important because it is for the first time it is based on the new CPI series. Okay, so again the base of the new CPI is 2024. Okay, you have to remember this thing also. So base year has been updated from 2024 to 2024 from 2012. Okay, weights for the CPI inflation is based on the household consumption expenditure survey of 23-24. Okay, now and the structure they have moved to 12 divisions now. 12 parts हैं उनके, जो कि नॉर्मली जो सर्वे है वहाँ से उन्होंने ली है, उसके बेसिस पे पूरा इन्फ्लेशन कैटेगराइजेशन है. ठीक है, सो कवरेज का है तो वेट्स ओवरऑल आइटम्स 358 हो गए हैं, उसमें 308 तो है गुड्स के और 50 है सर्विसेज के. ठीक है, इन जनरल ये चीज़ आपके 2 साल बाद एग्जाम में इतनी रेलेवेंट नहीं रहेगी, बट सिंस इट इज़ न्यू यू हैव टू रिमेंबर 358, 308 एज वेल एज 50. ओके, about weights, okay, we have read that 12 divisions are there. Okay, these are 12 divisions. So I will not recommend to remember each and every weight, but the highest weight is of food and beverages, that is 36.75%, and second highest is of housing, water, electricity, gas and other fuels. Okay, so try to remember at least these two weights. Okay, then for this entire price collection method, or like for entire this process, the new thing is introduced, that is computer assisted personal interviewing for price data collection. Okay, just remember this copy in case it is asked. Okay, one more thing is there, as of now till the last CPI data mainly it is based on the traditional collection methods. Okay, कि हाँ जाके like various markets कैसा है. Now they have added new thing also, like alternate data sources. E-commerce prices they are also including as an additional market with 12 large towns, population exceeding 25 lakh rupees, 25 lakhs. Okay, sorry.
and online sources such as OTT, even OTT subscriptions they are considering. Okay. For housing index compilation, again three constituent groups are there. So one is actual rent payment, second is maintenance, repair, security of the dwelling, and third is water supply and other miscellaneous services. Okay. So with this, basically like each and everything they are covering very comprehensively, so that actual inflation can be measured. Okay. Some FAQs are also there. I have taken this from a MOSPI compilation. Okay. So how often is the price data collected for CPI? So in general, even earlier it was compiled collected monthly. Okay. But for online prices, they will collect it on weekly basis. Okay. Then three reference periods. It is mentioned like index reference period, weight reference period, and price reference period. So index reference period is like 100. Okay, weight reference period, they will get the weights based on household consumption expense survey, and price reference period is calendar year 2024. Okay. Now we will cover the important forms from SEBI annual report of 2025. Okay. So just try to remember as much as you can, like even 2-3 questions uh, can, like you can mark correctly with these information, then it will be very helpful for the for clearing the exam. Okay. Because baki sara like static portion you must have covered, companies act, accounts, everything you must have covered. Okay. So यहाँ पे like न्यू इनिशिएटिव सेबी ने क्या क्या लिए हैं. राइट इशू स्ट्रिप लाइनिंग. द टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग अ राइट इशू has been reduced to 23 days. Okay. From the date of board approval. Earlier they were average like 318 days. So since it is mentioned in the annual report 23 days, so just remember this figure. Okay. Then voluntary delisting flexibility. Okay. So some company is listed and the promoter or like whoever want to delist it. Okay. तो उसका क्या process रहेगा? So as of now the process was reverse book building process. ओके इसमें क्या होता था, कंपनी अनाउंसेस अ फ्लोर प्राइस, मिनिमम प्राइस एक अनाउंस करती थी कंपनी, एंड पब्लिक शेयर होल्डर्स दे विल बिड द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू सेल. है ना, जो बुक बिल्डिंग में होता है उसका रिवर्स रहता था यहाँ पे. ठीक है, वहां पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करेंगे. तो उस जो बिड्स के बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होती थी. ठीक है, और डीलिस्टिंग कब हो पाती थी, अगर इनफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर एग्री कर देते थे. ठीक है, इस चीज में क्या इशू होता था कि सिंस दे सेलर्स आर वांट टू सेल, दे विल पुश प्राइस वेरी हाई. ठीक है, क्योंकि वो वही ट्राई करेंगे मैक्सिमम प्राइस उनको मिले. इसके कारण से काफी डीलिस्टिंग के अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे. ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहता था. तो नाउ सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड फिक्स प्राइस प्रोसेस. ठीक है, इसमें क्या करेगी कंपनी, एक फिक्स प्राइस अपफ्रंट बता देगी, उसमें जितने लोगों ने बिड किया अगर एक्सेप्ट किया तो डीलिस्टिंग हो जाएगी, अदरवाइज डीलिस्टिंग फेल हो जाएगी. ठीक है, so remember this term fixed price process. now ease of doing for issuers. ठीक है, तो अब न्यू कंसेप्ट सिंगल फाइलिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. इन दिस सिस्टम डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड ऑन वन एक्सचेंज आर ऑटो शेयर्ड विद अदर्स. ठीक है, एनएससी बीएससी एक एक्सचेंज पे किए, दूसरे एक्सचेंज पे ऑटो शेयर्ड हो जाएंगे. ठीक है, डिस्क्लोजर रिलैक्सेशन. टाइमलाइन फॉर डिस्क्लोजिंग बोर्ड मीटिंग आउटकम्स एक्सटेंडेड टू 3 hours. अर्लियर फ्रॉम इट वॉज इन लाइक 30 minutes में आपको बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स डिस्क्लोज करने होते थे, अभी दे हैव एक्सटेंडेड टू 3 hours. ओके, एंड फॉर लिटिगेशन टू 72 hours फ्रॉम 24 hours. ठीक है, देन एनओसी रिक्वायरमेंट. पहले ऐसा रहता था कि इफ दे कंपनी वांट टू कम विद एनी इशू, then it has to deposit 1% of the issue size to SEBI to get NOC. Now this requirement has been dispensed with. Okay. Now some other points are also important. लिमिट्स वगैरह जो एनहेंस की है, तो डेट प्राइवेट प्लेसमेंट, इसमें कैसा रहता था, टू एंकरेज नॉन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन. ठीक है, जो फेस वैल्यू जहाँ पे एक नॉर्मल कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना था अब तक, जैसे इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares, the limit was 1 lakh rupees. That has been reduced to 10,000. So remember this thing. Okay. Now we'll come with this UPI limit in individual. It is for public debt issues. Okay.
individual investors applying for public debt issue can use UPI for amounts up to 5 lakh rupees. So again, also remember this limit, that 5 lakh rupees limit. Okay. Then listing timeline. What is listing timeline? Actually, when a company launches IPO, FPO or any debt issue, there is a time gap. Okay, कि when company like T is that when issue closing date is T, ठीक है, तो इशू इस दिन क्लोज हुआ एंड जब वापस वो फाइनली लिस्ट होती है, ठीक है, उस डेट का जो डिफरेंस रहता है दैट इज लिस्टिंग टाइमलाइन. ओके, अंडरस्टूड. सो द डेट व्हेन शेयर्स स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इशू क्लोजिंग डेट, इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज कॉल्ड लिस्टिंग टाइमलाइन. ठीक है, तो दैट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम T+6 टू T+3 वर्किंग डेज. मैंडेटरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st November 2025. Again important, you have to remember it. Okay. And subscription period, again what is a subscription period? So it is the number of working days an issue remains open for investors to apply. Okay, कोई issue open हुआ तो आप कितने दिन तक अप्लाई कर सकते हो. That has been reduced to 2 working days. ठीक है, from 3. Again you have to remember this also. अब restrictions on SME IPO, SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज IPO जो आते हैं उसमें उसके लिए restrictions लेके आए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. एलिजिबिलिटी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट 1 करोड़ इन 2 out of 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. सेकेंड इज ऑफर्स फॉर सेल कैप. ऑफर फॉर सेल क्या होता है इन जनरल, आई थिंक यू मस्ट एवरीवन मस्ट नो, बट फिर भी एक बार देख लो कि जैसे कोई भी इशू आता है तो 2 पार्ट रहते हैं. एक रहता है फ्रेश इशू जिसमें नए शेयर्स इशू होते हैं. सेकंड होता है ऑफर फॉर सेल. उसमें क्या रहता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को सेल करते हैं. ठीक है. ऑफर फॉर सेल में डायरेक्टली कंपनी पैसा रिसीव नहीं करेगी, बट जो जिनके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं या फिर ओनर्स या प्रमोटर्स वो पैसे रिसीव करेंगे. ठीक है. तो अभी इन्होंने ये रूल चेंज कर दिया है कि जो ऑफर फॉर सेल है इट इज कैप्ड एट 20% ऑफ द इशू प्राइस. ठीक है, कि जैसे प्रमोटर्स एक्सेसिवली अपना पोर्शन ऑफलोड नहीं कर सकते. ठीक है. एंड नो सिंगल सेलिंग शेयर होल्डर कैन सेल मोर देन 50% ऑफ देयर प्री इशू होल्डिंग. इट इज द सेकेंड कंडीशन. ठीक है. तो ये किस कारण से लेके आया था, जस्ट टू मेक इट जेन्युइन, लाइक कैपिटल रेजिंग शुड बी जेन्युइन. ठीक है. एंड मेनली द प्रमोटर्स शुड नॉट लाइक कैश आउट एक्सेसिवली. ठीक है. इससे क्या होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहेगा. ठीक है, ताकि प्रमोटर्स अपना एक्सेसिव स्टॉक या स्टेक अगर ऐसे निकाल देते हैं तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ इशू हो. ठीक है. तो जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स. इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल 20% ऑफ द इशू प्राइस पे ये कैप कर दिया है. एंड नो सिंगल सेलिंग शेयर होल्डर कैन सेल मोर देन 50% ऑफ द प्री इशू होल्डिंग. ठीक है. नाउ फंड यूजेस कैप. ठीक है. अब इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस कैप्ड एट 15% ऑफ इशू साइज और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर. तो व्हाट इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस? सो कंपनी जब कोई शेयर इशू करती है, लाइक सपोज IPO ऐसे ला रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक यूजेस के लाएंगे. हमको प्लांट खरीदना है, हमको लोन रीपे करना है, मशीनरी खरीदनी है, एक्सपेंशन करना है बिजनेस का. ओके. एंड वन फ्लेक्सिबल कैटेगरी इज ऑल्सो देयर, इट इज कॉल्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. उसमें कुछ भी हो सकता है, वर्किंग कैपिटल, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, anything can be there, but it is very less specific. ठीक है. तो इतनी क्लैरिटी नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती. दैट इज वाई इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड दैट इट इज लाइक अमाउंट रेज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस शुड बी कैप्ड एट 15% ऑफ इशू साइज और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर. यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज लिमिट्स. ओके. एंड फॉर it is all about SME IPOs. Okay. And one more condition is there, that IPO proceeds cannot be used to repay loans from promoter group or related parties. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लोगों से पैसा लेके और जो प्रमोटर है उनके वापस वहां पे उनका लोन रीपे कर रहे हो उस हिसाब से. ओके. नाउ सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट इनिशिएटिव्स. इतना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं. अब नाउ डेरिवेटिव्स ऑल ऑफ यू मस्ट नो कि इट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम सम अंडरलाइंग फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स डेरिवेटिव रेशनलाइजेशन. ठीक है. तो इसमें कैसा रहता था कि वीकली ऑप्शंस जो रहते हैं तो ये पहले और भी मल्टीपल इंडेक्सेस में भी अवेलेबल थे. ठीक है. नाउ इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड और अभी केवल निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ये रहे हैं. ठीक है.
कारण क्योंकि क्या है कि इसके मतलब सिंस दे वर ऑल्सो यूज इन अदर इंडस्ट्रीज, स्पेकुलेशन और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। टू रिड्यूस एक्सेसिव स्पेकुलेशन, ठीक है, इन्होंने ऐसा किया कि भाई एटलीस्ट उसमें अलाउ किए हुए भी जो कि मोस्ट लिक्विड स्टेबल इंडस्ट्रीज है, ठीक है। नाउ पोजीशन लिमिट, ठीक है। तो अगेन व्हाट इज अ पोजीशन लिमिट? तो इट इज़ अ मैक्सिमम एक्सपोजर, it is a maximum exposure a trader or a trading member can take in derivative contracts, ठीक है। so position limit is the maximum exposure, तो ये बढ़ाया है revised for trading members to higher of 7500 crore or 15% of the total market open interest, ठीक है। अब again what is open interest? it is like a total outstanding derivative contract in the market, ठीक है। open interest is the टोटल आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मार्केट। तो ये 500 करोड़ से 7500 करोड़ कर दिया, हायर ऑफ, ठीक है, हायर ऑफ 7500 करोड़ और 15% ऑफ टोटल मार्केट ओपन मार्केट इंटरेस्ट। नाउ सम न्यूज अबाउट म्यूचुअल फंड्स, like it is all about from SEBI's annual report. One new concept, mutual fund light, has been introduced. It is for passively managed mutual fund scheme, ठीक है, simplified regulatory framework. Now it is again an important thing, specialized investment funds, ठीक है। तो it is an entirely new asset class, तो to introduced to bridge the gap between mutual fund and PMS. What is PMS? PMS and इसमें कैसा रहता है कि mutual funds you all must be aware about, ठीक है। PMS is portfolio management services, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं उसमें इंसान कम पैसे में भी काम लाइक फ्रॉम 250 to 500 की ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट इन PMS द अमाउंट, मिनिमम अमाउंट इज वेरी हायर, लाइक सपोज 50 लाख रुपीज, ठीक है। ऑन द again that mutual funds are highly regulated while PMS have flexible strategies, ठीक है। PMS है they can use aggressive strategies, customized strategies, but in case of mutual funds they mainly use limited use of derivatives out there, ठीक है। तो for investor there are only two options, mutual funds and PMS. So इन दोनों के बीच में SEBI introduced a new concept which is called specialized investment fund, SIFs, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख रुपीज एक्सेप्ट फॉर अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। सो इसमें बीच का पोर्शन आ गया ये 10 लाख रुपीज, लाइक इन केस ऑफ PMS इट वाज 50 लाख रुपीज, MF में बहुत नीचे था, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते, स्ट्रेटजी एग्रेसिवली नहीं एक्ट कर सकते थे, तो दोनों के बीच में ये SIF लेके आए, ठीक है। वन इज छोटी SIP कंसेप्ट, तो ये माइक्रो SIP स्टार्टेड फ्रॉम ₹250, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि छोटी SIP में अमाउंट कितना मिनिमम चाहिए, तो 250 चाहिए, ठीक है। अगेन टू लाइक एंकरेज न्यू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द और टू इन द बोलते हैं ना, ब्रॉडन द horizon of this stock market. So overseas investment, mutual funds allowed to invest in overseas funds trust up to 25% exposure of Indian securities to Indian securities, ठीक है। This NFO is like a new fund offer. Okay, AMC is mandated to deploy funds raised in new fund offer within 30 business days. कि मतलब वो आपने कुछ नया NFO लेके आए हैं तो उससे जो पैसा रिसीव होता है वापस उनको डिप्लॉय विद इन 30 बिजनेस डेज में आपको करना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लाइक एज ऑफ नाउ म्यूचुअल फंड्स वर नॉट कवर्ड बाय इनसाइडर ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड यूनिट्स इंक्लूडेड इन द प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, इट इज आल्सो अ न्यू डेवलपमेंट। नाउ अबाउट FPI, ठीक है। तो इसमें दो सिंपल पॉइंट्स है, सेल प्रोसीड FPI कैन access sale proceeds from the repatriation of reinvestment on T+1 day. In case of IFSC FPI, like they allowed up to 100% aggregate contribution by NRIs, OCIs and resident Indians in the corpus of FPIs based on IFSC, okay. It is like mainly about SEBI's some internal things. तो एक तो scores plus 2.0, ठीक है। So it is launched to reduce grievance redressal timeline to of 21 कैलेंडर डेज, ठीक है। जो सेबी की सुपर ऐप है, यूनिफाइड इन्वेस्टर ऐप, इट इज सारथी 2.0, ठीक है। लाइक जैसे बेसिक सेविंग अकाउंट होता है वैसे बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट का भी कंसेप्ट है, वहां पे लिमिट हैज बीन एनहेंस्ड टू
10 लाख रुपीज़ ऑफ वैल्यू ऑफ होल्डिंग्स। ठीक है, इसमें ऐसा रहता है कि मिनिमम चार्जेस रहते हैं और कुछ है ना, उस ये सारी चीज़ें रहती है। तो उसमें सपोज अर्लियर इट वॉज लिमिट वॉज लेस, तो कोई स्मॉल इन्वेस्टर है तो उसको भी एक्सपेंसेस देने पड़ते थे वो मेंटेन करने के लिए। तो दैट लिमिट हैज बीन एनहेंस्ड टू 10 लाख रुपीज़। तो अब अगर किसी का 10 लाख तक की वैल्यू की होल्डिंग्स है तो उसको वो इस अकाउंट के अंदर खुद को कवर कर सकता है। ठीक है, और इसका इस अकाउंट के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि इसमें क्या है। मेनली इट इज़ मेंट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ डीमेट अकाउंट। ठीक है, एवरी इन्वेस्टर कैन हैव ओनली वन डीमेट अकाउंट डेजिग्नेटेड एज BSDA। ठीक है, एंड द इन्वेस्टर मस्ट बी सोल और फर्स्ट होल्डर इन केस ऑफ BSDA। ठीक है, एंड टोटल वैल्यू कैन नॉट एक्सीड 10 लाख रुपीज़, जो कि इसमें दिया हुआ भी है। ठीक है, about nomination, so you should also remember this maximum number of nominee increase from 3 to 10। ठीक है, सेबी का जो AI चैट बॉक्स है इट इज कॉल्ड एज सेवा, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम सेवा। हम सब एनुअल रिपोर्ट के इतने ही पॉइंट थे। अब सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू लाइक सेबी रिसेंट सर्कुलर्स। वन इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इन केस ऑफ स्मॉलर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो वापस कंप्लायंस थी वो कम करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग करने के लिए ये चेंजेस लेके आए थे। ठीक है, व्हाट चेंज? सेबी मॉडिफाइड सेक्शन 3B ऑफ LODR मास्टर सर्कुलर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑडिट कमिटी डिस्क्लोजर रहता है एक तो, और एक शेयर होल्डर नोटिस डिस्क्लोजर रहता है। दोनों के लिमिट सेम है। तो इन बोथ द केसेस इन जनरल कैसे करना है कि एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उसकी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ठीक है, लेकिन अगर बट इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और क्यूमुलेटिव इन फाइनेंशियल ईयर इज लेस देन 1% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, सेल्स का 1% का या उससे कम है, और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर, इन केस ऑफ द कंपनी कैन यूज एनेक्सर 13A। इट इज लाइक मिनिमम इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, उसमें एक मिनिमम इंफॉर्मेशन ही देनी है। ठीक है, एंड फर्दर एग्जामिनेशन अगर 1 करोड़ से भी कम का है ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये जो डिस्क्लोजर रूल है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, डिस्क्लोज ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये लिमिट्स भी याद कर लेना। फिर इसमें कुछ खास है नहीं। ये वाला भी जो 1 लाख का 10,000 हुआ था उसी का एक्सटेंशन है, उसमें जीरो कूपन बॉन्ड को भी कवर कर लिया इन्होंने। नाउ विल कम टू इशुएंस ऑफ डुप्लीकेट। जस्ट लेट मी चेक, कुछ रह नहीं गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ease of doing investment, review of simplification of procedure and standardization of format for issuance of duplicate certificate। हार्ड कॉपी में अगर मान लो किसी का सर्टिफिकेट जैसे शेयर सर्टिफिकेट होते हैं वो अगर नहीं रहते हैं, पास में गुम जाते हैं, तो उसके बारे में ये सारा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि द थ्रेशहोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन जो कि कंपनी को सबमिट करना है, किस लिए कि वापस आपके डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेने हैं। ठीक है, हैज़ बीन इंक्रीज, मतलब कि सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो प्रोसेस था पहले जो 5 लाख रुपीज़ तक था वो अब 10 लाख रुपीज़ तक का हो गया है। ठीक है, द थ्रेशहोल्ड फॉर सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम करंट 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़ टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर्स। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ तक के अगर आपको डुप्लीकेट शेयर्स इशू करवाना है, मोस्टली इसमें लिखा नहीं है लेकिन फेस वैल्यू होना चाहिए, तो उस केस के लिए ये इंक्रीज बढ़ गई है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे, एक तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, स्टैंडर्डाइज एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो कैसा रहता था, हर कंपनी का खुद का अलग फॉर्मेट रहता होगा। ठीक है, तो उसमें हर इन्वेस्टर को जैसे मान लो 3 कंपनी, तो 3 बार अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में वो फॉर्म फिल करना होता है अगर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए या कोई भी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट इशू कराना है, तो उसके लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड प्रिस्क्राइब किया है सेबी ने। ठीक है, और जो 10 लाख से ज़्यादा के अगर हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज़, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगने थे वो अभी रेशनलाइज कर दिए, कम कर दिए हैं। ठीक है, अप टू 10 लाख तो उन्होंने बोला था कि सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा का है तो रेशनलाइज कर दिए हैं, और अगर वैल्यू अप टू 10,000 है, ठीक है, तो नोटराइजेशन की रिक्वायरमेंट उन्होंने
हटा दी है. नोटराइजेशन ऑफ एफिडेविट कम इंडेमनिटी बॉन्ड हैज बीन डन अवे विद फॉर केसेस इन्वॉल्विंग सिक्योरिटीज विद अ वैल्यू अप टू 10,000 रुपीज. ठीक है. एक ये और टॉपिक है, ये कवर करना ठीक रहेगा. इसमें एक्चुअली वैसे क्या है, B30, बस ये कोई चीज़ आ जाए तो ये थोड़ी यूनिक है, जो कॉमन सेंस है आप वहाँ पे मतलब अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे. तो इसमें कैसा होता है कि फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ना, कमीशंस इज प्रोवाइडेड टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. ठीक है. तो उसमें ऐसा था कि जो प्राइम सिटीज़ है, जो बोलो ना T30 सिटीज़ जो बोलते हैं, टॉप 30 सिटीज़ है, वहीं पे ही पेनिट्रेशन बढ़ रहा है इसका. ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का या जो भी. तो उसमें कैसा होता था ना कि जहाँ पे लोग ऑलरेडी अवेयर है, ठीक है, पीपल आर मेकिंग मनी, ठीक है, पीपल आर इन्वेस्टिंग, वहाँ पे कमीशंस ज़्यादा मिल रहे थे. ठीक है. सिटीज़ विच आर नॉट अंडर टॉप 30, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी. तो दैट इज़ वाई दिस होल इंसेंटिव स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस बाय द सेबी. ठीक है. तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर एलिजिबल फॉर एडिशनल कमीशन, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रायल कमीशन ऑन फॉर ऑन बोर्डिंग. तो इसमें दो पार्ट है. वन इज न्यू फीमेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर. फॉर एवरी न्यू फीमेल इन्वेस्टर आइडेंटिफाइड बाय अ न्यू पैन रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, वो कहीं पर भी हो, अगर फीमेल इन्वेस्टर है तो उनको एडिशनल कमीशन मिलेगा. किसे? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को. न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर फ्रॉम B30 सिटीज, एवरी न्यू इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, आइडेंटिफाइड न्यू पैन रिजाइडिंग इन B30 सिटीज बियॉन्ड द टॉप 30 सिटीज, ठीक है, उनको भी एडिशनल कमीशन मिलेगा. ठीक है. कितना मिलेगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स विल रिसीव कमीशन इक्वल टू 1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट. ठीक है. इसकी कैप है 2000, शायद आगे आ जाएगी वो. ठीक है. अब ये है कि ये कहाँ कहाँ पे नहीं लगते हैं. तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फंड्स ऑफ फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम्स वगैरह, ये इन पे नहीं लगते हैं. मेन थिंग क्या है, B30 सिटीज़ वाला इनिशिएटिव है क्या, वो यू शुड नो. ठीक है. फिर आते हैं रिक्लासिफिकेशन ऑफ रिट्स एज इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तो अभी क्या है कि फ्रॉम जनवरी 2026 एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय म्यूचुअल फंड्स and SIF in REITs shall be considered as investment in equity related instruments. ठीक है. while जो invites थे, infrastructure investment terms will continue to be classified as hybrid instrument for this purpose. ठीक है. तो बस इन दोनों में यही है कि जो रेट्स है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स अगर रेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स क्लासीफाई होगा, और इनवाइट्स में कर रहे हैं तो फिर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स ही माना जाएगा. ठीक है. एक ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल. एक सेबी ने वैलिडेट, जैसे आरबीआई ने डॉट बैंक वाला कंसेप्ट लेके आया था, वैसे इन्होंने यूपीआई में सेबी लेके आया है. ठीक है. तो उसमें क्या है, न्यू यूपीआई आईडीज ऑफ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज विल नाउ कैरी द एक्सक्लूसिव एट वैलिड हैंडल इशूड बाय एनपीसीआई. तो आपका पेमेंट सही जगह पे जाएगा. इसकी वैलिडिटी जानने के लिए आप चेक करें, जब यूपीआई आईडी @ वैलिड है, इसका मतलब दैट मस्ट बी अ रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी. ठीक है. नो ये पूरा आर्टिकल ऐसा कुछ है नहीं, बट व्हाट इज अ ब्लॉक डील, दिस थिंग यू शुड नो. ठीक है. तो ब्लॉक डील क्या होता है? इट इज अ सिंगल लार्ज ट्रेड ऑफ शेयर्स बिटवीन टू पार्टीज and it is mainly executed through a special trading window on stock exchange. ठीक है. तो इसमें कुछ अलग अलग कंडीशन रहते हैं. मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए या एक पर्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए. ठीक है. एक टाइम विंडो होती है, तभी कर सकते हैं. ठीक है. और ये सारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ब्लॉक डील्स होती है, एक्सचेंजेस को टाइमली ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट करने होते हैं. ठीक है. और ये मेनली कब कब होती है? जैसे कोई प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया है, ठीक है, या फिर प्राइवेट इक्विटी फंड कहीं से एग्जिट लेता है, या लार्ज इंस्टीट्यूशनल रीबैलेंसिंग होती है, सपोज जैसे कि इंडेक्स की रीबैलेंसिंग हो रही है, उस टाइम पे नॉर्मली ब्लॉक डील्स होती है. ठीक है. सेबी रिलीज इन्वेस्टर सर्वे, तो इसके भी कोई क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े मुझे कम लग रहे हैं. नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्च बाय एनएससी. ठीक है. एंड ये जो थे, ये कोलैबोरेटिव डिज़ाइन किसके, लाइक सेबी एंड CERC, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने मिलके ये बनाया. ठीक है. सम मोर पॉइंट्स म्यूचुअल फंड्स में. तो एग्जिट लोड कैप कट टू 3% फ्रॉम 5%. ठीक है.
तो एग्जिट लोड क्या होता है कि फी चार्ज बाय म्यूचुअल फंड, अगर कोई इन्वेस्टर रिडीम करता है उसकी यूनिट्स को बिफोर स्पेसिफाइड पीरियड तो एग्जिट लोड लगता है। ठीक है, वो स्पेसिफाइड पीरियड कुछ भी हो सकता है इमीडिएट भी हो, तो जो भी है ये, तो वो कैप 3% कर दिया फॉर 5%। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर इंक्लूजन इंसेंटिव अप टू 1% ऑफ न्यू इनफ्लो 2000 कैप, जो ऊपर पड़ा था अभी B30 वाला, उसमें 1% अमाउंट 1% अपन ने पढ़ा था, बट लाइक 2000 कैप वो यहाँ पे लिखा है फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर फ्रॉम अंडर सर्व सिटीज एंड वुमेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो कैप यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इज 2000। फिर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के वापस अगेन एक है अपडेट्स। तो अक्रेडिटेड ओनली स्कीम्स लार्ज वैल्यू फंड्स रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ रिलैक्सेशन वगैरह प्रोवाइड किए हैं किस चीज़ के लिए, कोई अक्रेडिटेड इन्वेस्टर होता है। फर्स्ट पॉइंट कि अक्रेडिटेड इन्वेस्टर रहता कौन है, एन इन्वेस्टर सर्टिफाइड एज पर सेबी फ्रेमवर्क टू बी फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड विद हायर नेट वर्थ और इनकम थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो वो अजम्पशन है कि सिंस दे आर फाइनेंशियली सोफिस्टिकेटेड दे मस्ट हैव नॉलेज अबाउट और दे मस्ट बी अवेयर अबाउट द रिस्क। ठीक है, तो दैट इज वाई उनको लोअर या लाइटर कंप्लाइंस वहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट चीज हो गई। अब लार्ज वैल्यू फंड्स, लार्ज वैल्यू फंड्स क्या होते हैं कि जहाँ पे मेजर अमाउंट जो रहता है वो ये मतलब कि दिस अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स या वही इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मतलब ईच इन्वेस्टर कमिट्स अ हायर मिनिमम अमाउंट। ठीक है, या फिर डेजिग्नेटेड फॉर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वैसा वाला हो गया। तो वहाँ पे जो मिनिमम टिकट साइज है या मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है दैट हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 70 करोड़ पर इन्वेस्टर टू 25 करोड़ पर इन्वेस्टर। ठीक है, नाउ एंजल फंड्स ओवरऑल। ठीक है, तो एंजल फंड्स कौन रहते हैं कि मेनली जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी हाई रिस्क थिंग, हाई रिस्क अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को जो फंड प्रोवाइड करते हैं वो एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या है कि ओनली न्यू एंजल फंड्स में ओनली अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, और एग्जिस्टिंग जो फंड्स हैं वो ट्रांजेक्शन बाय 26 सितंबर 2026। ठीक है, और फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 25 करोड़। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहता है कि एक बार जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट दे दिया उसके बाद जो अगेन नेक्स्ट स्टेज पे भी देना पड़े, फॉलो ऑन फंडिंग इज क्रिटिकल इन स्टार्टअप्स। ठीक है, तो अब कैसा, एंजल फंड्स कैन इन्वेस्ट अप टू 25 करोड़ पर कंपनी। ठीक है, ये इंक्लूडिंग फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब ये जो 25 करोड़ पर कंपनी है ना, ये टोटल लिमिट है एंजल फंड्स की। ठीक है, एंजल फंड, तो यहाँ पे ना फॉलो ऑन इन्वेस्टमेंट ही लिखा है अलाउड अप टू इतना, तो ये फॉलो ऑन नहीं है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट अलाउड अप टू 25 करोड़। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉलो ऑन जो भी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये भी है कि जो ये एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पोस्ट इशू स्टेक शुड बी लेस देन और इक्वल टू प्री इशू स्टेक, और ओनली ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर्स मतलब प्रो रेटा बेसिस पे रहेगा पूरा। ठीक है, अभी आगे और भी है, आज मतलब इस वीडियोस में इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूज़ सेबी की आएगी वो और कवर होगी, उसके अलावा बजट और थोड़ा पोर्शन इकोनॉमिक सर्वे का और आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, लाइक वी विल ट्राई टू कवर इट। अदरवाइज जो ये है वीडियो इससे आपके सेबी की मेजर मेजर चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।